Good morning, friends. Myself, Mohammad Khurshid. First of all, I want to welcome on my YouTube channel, Poverty Welfare Society Foundation. Friends, today my topic is how to improve spoken English. So, friends, I am going to tell you about how to improve spoken English. So, friends, English is a language which can learn anyone. It is not necessary that one should highly qualify. The most important thing is the interest. If you have interest, you can pick up easily. Okay, friends, if you have interest, you can pick up easily. If you want to improve your English, you have to observe some points which I am going to tell you about. Okay, so for number one is improve your word power. What, friends? Improve your word power. Every day 10 to 15 words you must learn and use in your own sentences. Okay, learn grammar, especially tenses. Read books, magazines, newspapers, topic which you like most. Go through that every day. You must make a friend who can able to speak in English with you. Do not fear while speaking English. You speak wrong or right does not make much difference. Build up the environment of speaking English. Use idioms and phrases in your sentences wherever it requires. Use courtesy in your language. Check your pronunciation. Watch the good people who speak good English. Try to copy their pronunciation. You should learn the face expression, body language, eye contact, excitement for communication skill. Watch dictionary and also check the spellings. Spellings is also plays important role. Okay, do practice every day. If no one is with you, adopt self speaking method. Example, create a question your own and give the answer. Read the magazine, newspaper loudly in initial stage. Attend seminars or educational picnic for developing confidence. So, friends, I have told you about how to improve spoken English with some important points. So, you should do this daily. Okay, and I am about to start the spoken class as soon as uh, because now we have not enough students
for the running class. At least 20 students should be subscribed in my channel, and after that I will start the class. I will teach you that how to learn you spoken English, and और मैं हर तरह के बच्चों को एजुकेशन देना चाहता हूँ। बिकॉज़ कुछ लोग टेंसेस वगैरह से वाकिफ़ होंगे, आई मीन टेंस वगैरह उनको आता होगा, बट वो बोल नहीं सकते इन द सेंस हेजिटेशन, शाई करते हैं, शर्माते हैं, या फिर उनको आता रहता है तो बोलने में उनको हेजिटेशन होती है। उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है कि वो कैसे फ्लुएंट में बात करें, फ्लुएंट इंग्लिश में बात करें। और उन लोगों को भी देखना है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, जिनको टेंस वगैरह के बारे में भी जानकारी नहीं है, उनको तो हम थोड़ा बेसिक से समझाएंगे। हम एक अलग मेथड से पढ़ाएंगे आप लोगों को। वो ना टेंस से स्टार्ट होगा और ना बड़े बड़े सेंटेंसेस से स्टार्ट होगा। हम आपको बोलना सिखाएंगे और इन्हीं दौरान आपको टेंस के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। कुछ वर्ड्स हम आपको डेली याद करने के लिए देंगे जो रोज़ बातचीत करने में यूज़ होती है, जैसे एक्चुअली हो गया, थैंक यू हो गया, सॉरी हो गया, ओके, एक्सक्यूज़ मी हो गया, किसी को मुखातिब करना हो अपनी तरफ, एक्सक्यूज़ मी हो गया, ओके। एंड इसी तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ अभी हमारे पास सब्सक्राइबर्स कम हैं, ओके। थोड़े और इंक्रीज़ हो जाने दीजिए तो आपको बहुत ही अच्छे लेवल से मैं पढ़ाने वाला हूँ। जिनको नहीं समझ में आता है वो भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक आपने बहुत से चैनल देखे होंगे, बहुत सी क्लासेस देखी होंगी, बट हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही रहेगा, डिफ़र रहेगा, समथिंग डिफरेंट। आई वांट टू टेल यू दैट समथिंग डिफरेंट इज़ माई क्लास, ओके। सो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को जितने भी लोग देखें वो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिकॉज़ सब्सक्राइब करने पर क्या होगा कि हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो इससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, ओके। और जल्द से जल्द क्लास स्टार्ट करने में सहयोग मिलेगा आप सभी का। तो आप लोग जितनी जल्दी अपनी संख्या बढ़ा लेंगे उतनी जल्दी हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। अभी तो ये हमारा छोटा सा एक सजेशन था आप लोगों के लिए कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है, कैसे आप लोगों को सीखना है। आपको इस चीज़ को रूटीन में उतार लेना है कि हाँ, हमको रोज़ 10 से 15 वर्ड्स याद करने हैं और उनको अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलने के लिए, सीखने के लिए किसी तरह की ना कोई
कैप्सूल आती है, ना किसी तरह का कोई सिरप आता है कि वो आपको पिला दिया जाए और आप बोलने लग जाए। इसका सीधा सा फंडा है कि आप शर्माना छोड़ें और हिचकिचाना छोड़ें, हेजिटेशन छोड़ें। आप ये मत सोचें कि हम बोलेंगे तो अगर हम कुछ गलत बोल गए तो सामने वाला हमारा मजाक उड़ाएगा। ओके, जब आप बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। बोलने की कोशिश करिए। अभी जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको सब सिखाने वाले हैं कैसे क्या करना है। ओके, तो इस वीडियो को जितने भी लोग देखें, जहाँ तक उनको नॉलेज है, जिनकी वो इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं है और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। जो बिल्कुल भी नहीं बोलना जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं उनको आता है कि कैसे बोलें, क्या है इज़ एम आर, कहाँ लगाएं, क्या यूज़ करें। ओके, उनके लिए भी ये उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो सब्सक्राइब करना। तो अगर आप लोग रियली इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इंग्लिश सीखने के, डिज़ायर्ड हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें। और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टिप्स देने वाले हैं। और आप अपने घर में, आप अपने भाई बहन में या स्कूल कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एज़ पॉसिबल एज़, जहाँ तक संभव हो सके, आप लोग इंग्लिश यूज़ करिए अपनी बोलचाल की भाषा में। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप ओनली 1 वर्ड बोलना चाहते हैं, वही बोलिए। 1 वर्ड। 1 से 2 बोलेंगे, 2 से 3 वर्ड बोलेंगे, 3 वर्ड से 4th वर्ड बोलेंगे, और इस तरह से आप वर्ड्स याद करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, याद करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, और वर्ड्स को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। ओके, क्रियाओं को वर्ड्स के साथ कनेक्ट करना है और दूसरी क्रियाओं को भी कनेक्ट करना है। किसके थ्रू? जैसे आप हिंदी में बोलते हैं या लिखते हैं, तो सेंटेंस को अगर जोड़ना होता है, फुल स्टॉप अगर आपको नहीं करना है, सेंटेंस को अगर बढ़ाना है, परंतु, किंतु, लेकिन, अगर, ओके, इस तरह इसी तरह इंग्लिश में सेंटेंस को कनेक्ट करते रहना है। एंड, इफ, बट, व्हाट, ओके, विच, हुज, हु, ओके, इस तरह से कनेक्ट करना रहता है। हम आपको सिखाएंगे कि आप कंटिन्यू इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, या फिर आप